Morning, students. We are studying the chapter our constitution. Constitution is a you know book, or you can say is a source of information in which everything our government is going to do, on what basis our government is going to run, on what basis our country is going to run, is given. So students, in the previous video we have started studying the topic India. We have studied India is sovereign, socialist, secular and democratic republic, that is given in the preamble of the constitution also. So about sovereign we have understood. Today we will take up socialist, that what is the meaning of socialist. India is a socialist state because socialism is one of the national goals to be achieved. So why India is a socialist state? Because it is one of our goals that we are supposed to achieve socialism. Thus India is against exploitation in all forms. अब socialism का क्या मतलब है? That India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice without being attached to any particular ideology. So, being a socialist means when a country is known as socialist country, that means in that country economic inequality will not be there. Any kind of exploitation of anyone, whether rich whether poor, of no one will be there. रिच पुअर तो ख़त्म होना ही चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है. और we won't take up any particular ideology, we will not follow anyone's idea but just equality. That is a socialist country. India is a secular state. Now what is a secular state? बहुत important है, many times this come for 3 marks. All religions enjoy equal freedom, right? Whether all religions, you can see in the picture many religions are there, they all enjoy equal freedom. No discrimination is made on grounds of religion, so we cannot make difference in people on the basis of their religion, right? अब देखो, इसको बिल्कुल अच्छे से पॉइंट्स में दिया हुआ है क्योंकि ये आता है 3 मार्क्स में, आता है क्वेश्चन जनरली. देन right to freedom of religion is granted by our constitution under the fundamental rights, and in our constitution also proper right to freedom is given, and that is made our fundamental right, that we can choose any religion, that is our fundamental right. India is a democratic state. Our government is elected by the people and the administration of the country. Now, what is the meaning of democratic state? So, India is a democratic state. Who elect our government? We people. We give vote. And administration. तो rule कौन करता है? Those elected representatives. The government is run according to the same, to some basic rules, and those basic rules are according to the democracy and according to the constitution of our country. Now what is the meaning of republic? India is a republic because the head of the state, our president, is an elected head from amongst the people. Now what is the meaning of republic? कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट. तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हम में से ही एक हैं, वो भी इलेक्टेड हैं. वो ऐसे ही नहीं कि भाई अपनी मर्ज़ी से ही कोई भी बन रहा है, जैसे मान लो एक प्रेसिडेंट है, आगे उसका बेटा या कोई भी, ऐसे नहीं. इलेक्टेड, उसको भी इलेक्शंस के थ्रू हम चूज़ करते हैं. दैट्स वाई इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था उस दिन रिपब्लिक का, ये मतलब है. ऑन द अदर हैंड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी, England is not a republic because its head of the state is hereditary, that is king or queen. You can, England, United Kingdom, that is a democratic country. Democracy is there, but still that country is not republic because वहाँ पे head of the state कौन है? King या queen, if you remember, right?
सो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री तो रिपब्लिक भी है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है और सोवर्जन भी है. सी, वी मस्ट बी प्राउड टू लिव इन दिस काइंड ऑफ कंट्री, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब आप टीवी में तो देखते होंगे भाई, पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट, ये वो सो. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? So we have parliamentary form of government both at the center and in the states. In fact, we have adopted this system on British pattern. तो ये जो parliamentary form of government है ना, this system we have taken up from the Britishers, right? अब देखते हैं क्या होता है. In a parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive. The Council of Ministers is constituted from amongst the members of the legislature. अब देखो, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या होती है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेगिस्लेचर में, वही क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं. मिनिस्टर्स कौन हुए, एग्जीक्यूटिव, वही मिनिस्टर्स बनते हैं. इट होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर. सो जब तक हमारे लेजिस्लेचर को लगता है कि ये सही हैं, सही काम कर रहे हैं, तब तक वो एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं. इट होल्ड, ओके, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट. इन केस ऑफ इंडिया इज़ अ नॉमिनल हेड. तो भाई हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट तो सिर्फ नॉमिनल हेड हैं. नॉमिनल हेड मीन्स कि नाम के ही हेड हैं, ओके. सेरेमोनियल हेड, सेरेमनीज में ज़रूरत होती है. ऑल्दो ही शी इंजॉयज मैनी पावर्स, बट इन प्रैक्टिस ऑल दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो वैसे तो बहुत सारी पावर्स हैं, पर फिर भी सारी रियल पावर्स किसके पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास हैं. ठीक है, जो किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का. ठीक है, अब है फेडरल एंड यूनिटरी. फेडरल एंड यूनिटरी, हमारी गवर्नमेंट क्या है, फेडरल है और यूनिटरी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरलिज्म, फेडरेशन इज रिटन एंड रिजिड एंड इट डिवाइड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. अब देखो, हमारे पास सेंटर में भी पावर्स हैं, स्टेट में भी पावर्स हैं. हमारी कंट्री की पावर्स भी डिवाइडेड है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी. और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब है, ये तो इंडिपेंडेंट है, इन पे तो किसी का मतलब नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं इनको ऑर्डर कर सकती, राइट? तो बट क्या है, इंडिया का भी फेडरल सिस्टम है. ठीक है, इंडिया में भी क्या है, सेंट्रल स्टेट का सिस्टम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें. द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इज़ सो पावरफुल. इतनी पावरफुल है देख कि कभी कभी हमें लगता है कि इंडिया क्या है, फेडरेशन है ही नहीं. फेडरेशन मीन्स सेंटर स्टेट गवर्नमेंट वाली कंट्री ही नहीं है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कंट्री है, यूनिटरी है. पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पावर्स ऐसी दी हैं जो दोनों के पास है. उससे हमें पता चलता है कि इंडिया क्या है, एक फेडरेशन है, फेडरल कंट्री है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब एक और बार मैं आपको बता देती हूँ. देखो, जब भी हम फेडरल वर्ड यूज़ करेंगे, फेडरल का मतलब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों. ठीक है, बोथ. ओके, यूनिटरी अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे, उसका मतलब होगा ओनली सेंट्रल. ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया फेडरल भी है, यूनिटरी भी है. कैसे, फेडरल हमारे पास ये दोनों हैं, ठीक है. यूनिटरी कभी कभी लगता है क्योंकि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, इसलिए. अब समझ आ गया, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब देखो, चलो फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी पढ़ते हैं, और ये वाला डू यू नो आप अपने आप पढ़ोगे. ओके, चलो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो सबको पता है क्या होती है. जो भी 18 ईयर है, 18 ईयर से ऊपर है, अडल्ट है, वो क्या करेगा, वोट देगा. हर वोट की वही एक वैल्यू है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. कोई भी पर्सन, चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सबको बिल्कुल डेमोक्रेसी का ये बेसिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको राइट है वोट देने का. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अप टू हेयर ओनली वी विल स्टडी टुडे.
and last two topics and exercise work we will take up in the next video. Thank you students, have a nice day.